خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا کا خادم پاسٹر آصف صادق آپ کے سامنے خداوند یسوع مسیح کی تماثیل میں سے ایک اور تمثیل لے کر آج حاضر ہوں، اور یہ تمثیل عقل مند اور دیانتدار نوکر کی تمثیل ہے۔ میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھوں گا۔ اس تمثیل کا ذکر ہمیں دو اناجیل میں ملتا ہے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کے 12 باب میں، اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کے 24 باب میں۔ میں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کے 12 باب کی 42 آیت سے یہ پڑھنا چاہوں گا، 42 سے 48 آیت تک۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پطرس نے کہا کہ اے خداوند، تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ دیانتدار اور عقل مند داروغہ جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانٹ دیا کرے؟ مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالا ہونا شروع کرے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو موجود ہوگا، اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا۔ اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، ان لفظوں پر غور کیجئے گا، اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا۔ مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے، وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ طلب کریں گے۔ عزیزو، اس تمثیل کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ متی کی انجیل میں اور لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح کے دیگر بیانات کو بھی پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے تماثیل کے ذریعے اپنے شاگردوں کو یہ سمجھانے کی اور سکھانے کی کوشش کی، اور یہ سکھایا، یہ سمجھایا کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے کلی طور پر خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھیں، اسی پر ایمان رکھیں، کیونکہ اسے ہماری فکر ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس تمثیل سے پہلے یسوع مسیح نے ایک بات اپنے شاگردوں سے کہی کہ تمہاری کمریں کسی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ بہت سے لوگ یسوع مسیح کے اس قول کو تمثیل کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ فگر آف سپیچ ہے۔ یسوع مسیح کچھ سمجھانے کے لیے یہ ایک فگر آف سپیچ، ایک انداز بیان کرتا ہے کہ تمہاری کمریں کسی رہیں، کیونکہ جس ماحول کے اندر، جس جگہ پر یسوع مسیح تعلیم دیتا تھا، جن لوگوں کے درمیان وہ تعلیم دیتا تھا، جس زمانے کے اندر تھا، اس ماحول میں، اس جگہ پر، اس علاقے میں لوگ لمبے لمبے چوغے پہنتے تھے، اور وہ لوگ چوغے پہن کر بھاگ نہیں سکتے تھے، کچھ تیزی سے کر نہیں سکتے تھے، اور اگر کسی کو بھاگنا ہے یا کچھ تیزی سے کرنا ہے تو وہ اپنے چوغے کو اوپر کر کے اس کے گرد پٹکا باندھ لیتا تھا۔ اس کو کہتے تھے کمر کس لینا، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ کسی چیز کا، کسی کام کا سر انجام دینے کا، تیزی سے، تندی سے سر انجام دینے کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ کسی نے یہ عزم کر لیا ہے کہ میں اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ اور دوسری طرف جب یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ تمہارے چراغ جلتے رہیں، تو یہ صاف بات ہے کہ چراغ جلتے رہنا کسی کے منتظر ہونے کی علامت ہے، کسی کا انتظار کرنے کی علامت ہے۔ رات کو لوگ اگر کسی کا انتظار کرتے تھے تو وہ اپنے چراغ جلتے رکھتے تھے، منتظر رہتے تھے۔ چراغ بجھا دینے کا مطلب ہے کہ اب اور کوئی نہیں آئے گا، اب ہم سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، دروازہ بند کر سکتے ہیں۔ اور یہی یسوع مسیح سمجھانا چاہتا ہے کہ خوشخبری کے کام کو تم نے
तेजी से करना है, तुम्हारी कमरें कसी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें कि मुंतजिर रहो, तुम्हें मालूम नहीं कि कब मालिक आ जाएगा। और जब यीशु मसीह ने इस तमसील को बयान किया तो उसने रूहानी तौर पर हमें खुशखबरी की गवाही के काम के लिए बड़ा मुस्तैद होने को कहा और यीशु मसीह की आमद के लिए, दूसरी आमद के लिए तैयार रहने को कहा। ये ईमानदारों के लिए तालीम है कि हमें किस तौर से जिंदगी गुजारना है। ये बज़ाहिर बड़ी सादी और सीधी आसान तमसील है जो हमें यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार और होशियार रहने के बारे में बताती है, चौकस रहने की तालीम देती है। और ये मालिक की, इससे पहले यीशु मसीह कहता है कि अगर मालिक को, नौकर को पता हो कि मालिक कब शादी से लौटेगा, तो शादी की ज़ियाफत से यहाँ ये मुराद इन तमासील के अंदर, इन हवालों के अंदर ये नहीं लेने की ज़रूरत कि ये यीशु मसीह की या बर्रा की और कलीसिया की शादी के ताल्लुक से है। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जो यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा है कि बर्रा की आमद से मुतल्लिक वो कब आएगा किसी को नहीं पता। अमूमन हम जब शादी ब्याह की ज़ियाफतों में जाते हैं तो किसी को पता नहीं होता कि घर में कब वापस लौटेंगे, आने का कौन सा टाइम है, देर सवेर हो सकती है। लेकिन अगर नौकर को मालूम है कि वो उसका मालिक कब आएगा तो वो तैयार रहेगा। और यहाँ पर जिम्मेदारी की बात है। यीशु मसीह ने तुम में वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन है, वो कौन मुख्तार ऐसा है जिसको मालिक ने दीगर नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया। ये खुदा के खादमों पर और उन कलीसियाई रहनुमाओं पर यह बात अपील करती है जो कलीसिया के रहनुमा तो बनने की कोशिश करते हैं लेकिन कलीसिया को बहुत अंधेरों में लेकर जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, आज गो के जिस तेजी के साथ कलाम की मुनादी की जा रही है, अबलीस भी उसी तेजी के साथ काम कर रहा है और बहुत सी बिदतें और गलत तालीमात भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुख्तार का काम जो है वो दीगर नौकर चाकरों पर नजर रखना, उनकी खैर आफियत का ख्याल रखना, उनको वक्त पर खाना देने से मुतल्लिक है। यहाँ पर वक्त का जो खाना है वो रूहानी गिज़ा है। अगर हम लायक तौर से रूहानी गिज़ा कलीसिया तक पहुंचा रहे हैं तो हम ध्यानदार और अक्लमंद नौकर। और फिर लिखा है कि मुबारक है वो नौकर, मुबारक है वो मुख्तार जिसका मालिक आकर उसे ऐसा ही करते पाए। ये बहुत बड़ी बात है। लिखा है, अगर हम मत्ती की अंजील में इस हवाले को पढ़ें तो लिखा है कि तब मालिक खुश होगा और अपनी कमर बांध कर उनको खाना सर्व करेगा। ये कैसी बड़ी खुदा की बादशाही के अंदर बात है कि मालिक खुद खुश होकर अजर और इनाम देता है। इससे बड़ी क्या बात कि मालिक अपने साथ बिठाता है। यीशु मसीह कहता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है तो मैं उसके पास अंदर जाता हूं और मैं उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। ये कितने बड़े एहसास की बात है। लेकिन अगर मालिक आ जाता है और नौकर या मुख्तार जिसको मुख्तारी सौंपी गई है, जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो लायक तौर से खिदमत नहीं कर रहा तो उसका क्या अजर होगा, उसका क्या हाल होगा, क्या हशर होगा। और ऐसे वक्त में कि वो उसका मुंतजिर ना हो, वो आज हम बहुत से हालात ऐसे देखते हैं कि खुदा के खादम लोग जो कलीसिया के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बयान करने की कोशिश करते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हकीकी तालीम बहुत कम लोग दे रहे हैं। लोग सोशलिज्म की तरफ भाग रहे हैं, लोग दुनियावी कामों के अंदर आने जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग दुनिया के कामों में उलझे हुए हैं। लोग अगर किसी दुनियावी काम के लिए, किसी नाच रंग के लिए, किसी महफिल तमाशा के लिए, किसी सोशल गैदरिंग के लिए अगर लोगों को इकट्ठा किया जाए नहीं आएंगे। लेकिन जब उनको चर्च के लिए, खिदमत के लिए, खुदा यीशु मसीह की आमद के लिए पैगाम दिया जाएगा तो लोग इससे भागेंगे, कतराएंगे। ये कैसे हालात हैं, लोग किन हालात के अंदर से गुजर रहे हैं। ये उन नौकरों की मिसाल है जो ये भूले हुए हैं कि किस वक्त मालिक आ जाएगा। अजीजों, ये तमसील जो है ये हमें यीशु मसीह की आमद के बारे में और हमारी जिम्मेदारी के बारे में याद रखें। जितना ज्यादा बड़ा ओहदा होगा, जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होगी और उसका अजर भी उतना ही बड़ा होगा और उसकी सजा और जजा भी उसी हिसाब से होगी। याद रखें, जहन्नुम में खुदा की अदालत के अंदर सजा के भी दर्जात होंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे थोड़ा दिया गया, जिसने ना जानकर
ना जानते बूझते अगर कोताही की तो उससे थोड़ा पूछा जाएगा, लेकिन जिसको जिम्मेदारी सौंप दी गई है अगर वो उसको लायक तौर से उसका नहीं करता बयान तो उससे ज्यादा तलब किया जाएगा। ये यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से अजीजों मेरे तकरीबन तमाम मैसेजेस के अंदर एट द एंड दो ही पॉइंट होते हैं, एक तो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट और दूसरा निजात, बपतिस्मा। क्योंकि इसके बगैर निजात नहीं। बपतिस्मा हमारे ईमान का इकरार है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कि वो इस जहान के अंदर मेरे गुनाहों को उठाने के लिए मेरी खातिर मसलूब हुआ, मेरी खातिर उसने जान दी और मेरी खातिर वो जी उठा और अब वो मेरी खातिर दोबारा मुझे अपनी बादशाही में ले जाने के लिए आएगा। यही हमारा ईमान है। इसलिए अजीजों इस तमसील के मकसद को समझे जो यीशु मसीह ने समझाने की कोशिश की कि जागते रहो, तुम्हारी कमरे कसी रहें, तुम्हारे चिराग जलते रहें ताकि तुम मालिक की खुशी के अंदर शामिल हो जाओ। गैर जिम्मेदार और बेदयानत जो नौकर है उसको सजा मिलेगी। जिसे बहुत ज्यादा सौंपा गया उससे बहुत ज्यादा तलब किया जाएगा। मैं आज इस हालात के अंदर, वेस्ट के अंदर, दुनिया के हर जगह के अंदर लोगों को देख रहा हूं। लोग दावे तो बहुत करते हैं, लोग बड़े तौर से अपने आप को कलाम का मास्टर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, वी नो नथिंग। ये सिर्फ रूहुल कुद्स है जो हमें समझाता और सिखाता और दिखाता है। बस उस दयानतदार और अक्लमंद नौकर की मानिंद बनने की कोशिश करें जिसको सौंपा गया और उसने लायक तौर से, वरना मालिक आकर उसे क्या करेगा? बाहर अंधेरे में डालेगा अगर उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना किया। हमें अपनी जिम्मेदारी इस अखीर दौर के अंदर निभाने की जरूरत है, पूरी करने की जरूरत है, ताकि हम लायक तौर से यीशु मसीह की आमद के लिए न सिर्फ खुद तैयार हो सकें बल्कि बहुत से डूबते लोगों को, बहुत से ऐसे लोगों को जो अंधेरे में हैं, जो खुद को दाना जताकर बेवकूफ बन गए, उनको तेरी खुदा की पाक हजूरी के लिए तैयार कर सके। अजीजों आइए अपने सरों को झुकाएं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरी हजूरी में आता हूँ। इस वक्त तेरा खादम होते हुए खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में तेरे आला इलाही उत्तम अख्तियार को लेते हुए तेरे खुले आसमान के नीचे तेरी फिजा के अंदर खुदा तेरे लोगों के लिए, इन सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए सलामती की दुआ खैर चाहता हूँ, ताकि खुदा ये लोग तुझ में बढ़े और तेरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें और लायक तौर से खुदा एक ईमानदार मुख्तार की मानिद उस जिम्मेदारी को जो ईमानदार होते हुए हमें सौंपी गई है तेरी आमद के लिए लोगों को तैयार कर सके। हाँ खुदा मैं इन लोगों के लिए बरकत और सलामती की दुआ खैर चाहता हूँ खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।